سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنور علی خان۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ صدر عارف الوی نے حکومت تبدیلی کی مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کے نام خط لکھا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مبینہ حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات اور سماعت کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی ترجیحاً چیف جسٹس خود کریں۔ ملک کو سیاسی معاشی بحران سے بچانے، صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں ایک سنگین سیاسی بحران منڈلا رہا ہے۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں پاکستان کے عوام میں بڑی سیاسی تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ صدر عارف الوی نے حکومت تبدیلی کی مبینہ سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کے نام خط لکھا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مبینہ حکومت تبدیلی سازش کی تحقیقات اور سماعت کے لیے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی ترجیحاً چیف جسٹس خود کریں۔ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ بلاول بھٹو کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں وزیر کے ذریعے حکومت نے دھمکی ان تک پہنچائی، فوری انتخابات یا پھر مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس کائے ہے، وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیسری قوت کو موقع ملے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا، آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا۔ اس معاملے پر کیسے یہ ایوان خاموش رہ سکتا ہے؟ آئین شکنی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لاء ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم نے بھاگتے 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 آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب لوگ سابق وزیر اعظم پاکستان جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے انکار آج تک کر رہے ہیں۔ یہ نیشنل اسمبلی، یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہمارا تاریخ میں پھاڑا گیا ہے۔ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے، اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے۔ فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جہاں وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے جو اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کر رہا 30 سال سے، جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں، 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے کرپشن، چور 4 سال حکومت میں رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا، خود چور نکلے۔ میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں اگر کوئی بجلی چور، آٹا چور اور چینی چور ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو 4 ہفتے میں مہنگائی نظر آنے لگ گئی، مہنگائی کا چورن اب نہیں بکے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی تو کوئی میر جعفر میر صادق بن گیا۔ اگر فوج کہتی ہے وہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گی تو یہ خوش آئند بات ہے۔ کہ ابھی 4 ہفتے پہلے تک تو وزراء جو عمران خان کے تھے وہ پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں۔ اب اچانک 4 ہفتے بعد آپ کو مہنگائی یاد آنا شروع ہو گئی۔ یہ جو چورن اب وہ بیچے گا مہنگائی کا، وہ نہیں بکے گا۔ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو۔ آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ شعبہ فرا خانوں سے بھرا ہوا ملے گا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری نوکریاں کروڑوں روپے لے کے فرا خان نے دے دی۔ اگر کوئی بجلی چور ہے، دوائی چور ہے، آٹا چور ہے، چینی چور ہے تو وہ عمران خان ہے۔ نون اور شین آج بھی یوں ہیں اور انشاءاللہ یوں رہیں گے۔
नून भी शीन है और शीन भी नून है। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। ये साफ सी बात है, अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालेंगे, अगर पाकिस्तान की अफवाज ने ये फैसला किया है कि वो अपने आप को अपने आईनी रोल तक महदूद रखेंगे, अपना इदारा कार तक महदूद रखेंगे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नजर आ गया, तो आज कोई मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया। इमरान खान का बयानिया एक जाली खत है। रोना आता है जो खुद गुलामी की अलामत है, वो आज़ादी की बात करता है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 2013 में उनसे कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में मजहब की जड़ें उखाड़ने के लिए इससे बेहतर बंदा नहीं। लोग कहते हैं 3.5 साल के गंद को 3 दिन में क्यों नहीं उठाया। रोज रोज बयानिए तब्दील होते रहते हैं। आज का बयानिया एक जाली खत है, पाकिस्तान के अंदर गुलामी की अलामत है। रोना इस पे आता है कि वो भी आज़ादी की बात करें। 2013 की बात कर रहा हूँ। मौलाना, पश्तून बेल्ट में मजहब की जड़ें गहरी हैं और इन गहरी जड़ों को उखाड़ने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मुनासिब आदमी और नहीं था। हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है, हम भी उसके रुकन हैं। हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, हमने नए फार्मूले के साथ उनको एंगेज करना होगा। मुश्किल ये है कि आम आदमी या हमारा मुखालिफ 3.5 साल के गंद को कहते हैं 3 दिन में क्यों नहीं उठाया आपने। PTI ने मुल्क के हर शोबे की ईंट से ईंट बजा दी है। मुल्क में आए रोज आइन शिकनी हो रही है। आइन को खिलौने की तरह बार बार तोड़ा जा रहा है। लंदन में वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जमात नून लीग पर है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये मामूल की मुशावरत है। जब से मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली आई थी, हम सब की ख्वाहिश थी कि कायद नवाज शरीफ साहब से आके मुल्क के मामलात पे तबादला ख्याल करें, उनकी रहनुमाई लें। आपको पता है कि पिछले 4 सालों में PTI ने पाकिस्तान के हर शोबे की ईंट से ईंट बजा के हमारे सुपुर्द किया है। इस वक्त मईशत को संगीन चैलेंजेस हैं, मुल्क में आइन शिकनी हो रही है, आइन को ऐसे तोड़ा जा रहा है जैसे बच्चों का खिलौना हो। इसी तरह जो मुल्क की खारजा पॉलिसी है उसको संगीन ख़तरात हैं, मुल्क बदतरीन तन्हाई में है। तो इस वक्त एक बड़ी कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। या हमने स्टेटस को की पॉलिटिक्स करनी है या मुल्क को इन बहरानों से निकालना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुल्क के इन मसाइल के ऊपर मुशावरत करके इनका हल निकालें, और ये मुशावरत उसी सिलसिले में है। फराह गुज्जर का दिफा करने वाले बताएं वो किस जहाज़ में आई थीं। शहबाज शरीफ के साथ तमाम अफराद अपने खर्च पर लंदन आए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरकारी खर्च पर आने की PTI की बात झूठ है। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग बशमूल शहबाज शरीफ के, बशमूल मरियम के, अता के, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब मैं हम सब अपने अपने खर्चे पे आए, अपने अपने पैसों की टिकट लिए। कुछ लोग बिजनेस क्लास में आए, कुछ इकॉनमी में आए, लेकिन अपने अपने पैसों की टिकट लिए, अपने खर्चे पे होटल में ठहर रहे हैं। हर चीज़ हमारी अपने खर्चे पे। ये खान साहब जो है, इनकी एक जो वो ट्रेडिशन है झूठ बोलने की, उस पर वो कायम है कि इस पर भी झूठ बोल रहे हैं कि हम खर्चे पे आएँ। हम PTI वाले नहीं हैं कि हुकूमत के खर्चों को घूमें, हम अपने खर्चे पे अल्लाह की मेहरबानी से आए हैं। ज़माने में 190 मिलियन पाउंड किसी के पकड़े गए थे। वो इंग्लैंड की बरतानिया की अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान को ट्रांसफर किया। 190 मिलियन पाउंड में से 140 मिलियन पाउंड अभी आ चुके हैं सपोजिटली पाकिस्तान में। हम ये जानना चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत से कि वो किस अकाउंट में है और किस अथॉरिटी से वो अकाउंट में दिए गए हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान को पैसे मिल गए या नहीं, और अगर नहीं मिले और किसी को आपने ये कंसेशन दिया है तो किस बेसिस पे दिया है, कोई उसकी वजह है। और ये जो बात कर रहे हैं फराह
गुज्जर साहिबा या गोगी साहिबा, और इनके ऊपर केस कर दिया गोगी साहिबा कहने पे उनको, तो मैं उनको फरा गुज्जर साहिबा ही कह देता हूँ। उन्होंने उनके जितनी तस्वीर आई हैं जिसमें वो लाख लाख डॉलर के बैग लेती हैं, वो किसी के जहाज में आई हैं, तो वो भी ज़रा बता दें कि क्या चक्कर है इमरान खान का उन साथ से कि वो किसी के जहाज में बैठती हैं। और फिर ये भी बता दें कि ये जो पैसे एक किसी खातून को आपने अथॉरिटी दी थी कि पंजाब में सारे पोस्टिंग ट्रांसफर करो, और वो पैसे के उसमें रखती थी, तो क्या पैसे खुद रखती थी सारे या साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक थे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। ये मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से कुछ देर पहले बरतानवी हाई कमीशन ने उनके रास्ता पर मुलाकात की है। इस मुलाकात में चौधरी शाफे हुसैन, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर को तबादला ख्याल किया गया। उसके साथ साथ बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत भी की गई और उनकी सेहतयाबी के लिए जो है नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के दौरे के बाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेवोस भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीका रवानगी 16 मई को मुतवक्के है। अमरीका से वापसी पर बिलावल भुट्टो 22 मई को डेवोस स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के दौरे के बाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत भी करेंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस बारे में। देखिए, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे अमेरिका के मामले पर ये जो दौरा है, इस हवाले से दौरे को हतमी शक्ल दे दी गई है। वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 16 मई को अमेरिका जाने का इम्कान है और इस हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा दौरा अमेरिका के बाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए डेविस भी जाएंगे और अमेरिका से वापसी पर बिलावल भुट्टो 22 मई को डेविस स्विट्जरलैंड जाएंगे और स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में खिताब भी करेंगे और शिरकत के लिए 22 से 26 मई तक ये डेविस स्विट्जरलैंड में ये जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है ये मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक भी होंगे और इसमें खिताब भी करेंगे। और यूं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा बनने के बाद उनका पहला दौरा अमेरिका का होगा। अमेरिका का जो पहला दौरा है वो 16 मई से अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। सदर आरिफ अलवी और वफाकी हुकूमत में कशीदगी बरकरार है। चारों सूबों में गवर्नर्स के ओहदे खाली हैं। वज़ीर आज़म के एडवाइस के बावजूद नसरीन जलील, वली खान काकड़, मलिकुर रहमान को गवर्नर बनाने की मंजूरी नहीं दी गई। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा। आरिफ अलवी वफाकी बरकरार है। चारों सूबों में गवर्नर खाली हैं। गवर्नर के एडवाइस के बावजूद सदर ने नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तैनात करने की अभी तक मंजूरी नहीं दी। एडवाइस के बावजूद वली खान काकड़ को भी गवर्नर बलोचिस्तान नहीं लगाया गया। रहमान को भी गवर्नर पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत अभी तक गवर्नर के नाम का तयन भी नहीं कर सकी। पंजाब के अलावा तीनों सूबों में सूबाई समूह के स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पंजाब में जुलाई का कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारियां संभालने से इनकार भी हुआ है। तो सदर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी न करने पर शहबाज शरीफ दोबारा गवर्नर की तैनाती की एडवाइस भेजेंगे और सदर ने फिर भी नोटिफिकेशन जारी न किया तो काबीना डिवीजन नए गवर्नर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। कागजात नामजदगी 16 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। मज़ीद जानेंगे, रुजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रुजीना, बताएगा इस शेड्यूल के हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सिंध में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है
اور دوسرا مرحلہ اس کے حوالے سے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ نامزد امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ 17 مئی کو شائع کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 20 مئی کو ہوگی۔ اپیل داخل کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 24 مئی مقرر کی گئی ہے اور اپیلوں پر فیصلے کی آخری تاریخ 27 مئی تک ہے۔ امیدواروں کی کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 30 مئی ہے اور امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کی تاریخ 31 مئی مقرر کی گئی ہے، جبکہ پولنگ جو ہے وہ 26 جون کو ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرے مرحلے میں 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات 24 جولائی 2022 کو ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ روزینہ علی آپ کا۔ پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ مطلوبہ مقدار میں خریداری نہ ہونے سے پرائمری ہیلتھ میں ادویات کے شدید بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کو ادویات خریداری کے لیے مطلوبہ فنڈز ہی فراہم نہیں کیے گئے۔ ڈی جی ہیلتھ آفس کو ادویات خریداری کے لیے صرف 4 ارب روپے ملے۔ مزید جان لیتے ہیں، لاہور سے زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد چودھری، بتائیے گا اس بارے میں۔ پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور کارنامہ، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو ادویات کی شدید نوعیت کی قلت جو ہے اس کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز کے ذریعے جو ادویات کی خریداری ہے اس کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے، لیکن گزشتہ مالی سال کے جو بقایا جات تھے ان کی ادائیگی کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، جس پر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ آفس نے 1.25 ارب روپے جو ہیں وہ بقایا جات کی ادائیگی پر خرچ کر دیے اور ادویات کی خریداری جو ہے اس کے لیے صرف 2.25 ارب روپے باقی بچے، اور انہی 2.25 ارب روپے سے جو ہے وہ ادویات کی خریداری کا عمل جو ہے وہ پروسیس مکمل کیا گیا ہے۔ 30% تک ادویات کی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں اس کی وجہ سے جو مقدار 2.25 ارب روپے میں آج سے 2 سال پہلے خریدی جا سکتی تھی اس کی بھی جو ہے اس میں بھی شدید کمی آئی ہے اور انتہائی کم مقدار میں ادویات مل پائی ہیں ابھی تک محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو، جس کی وجہ سے ایک شدید نوعیت کا ادویات کی کمی کا جو بحران ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ مزید نہ تو فنڈز دیے گئے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ جو باقی ماندہ جو ٹارگٹ ہے جو مکمل کیا جانا تھا اور یہ تمام پروکیورمنٹ جو ہے وہ کی جانی تھی اس کے لیے جو فنڈز ہیں وہ نہ ملنے کی وجہ سے اس عمل کو بھی شروع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا۔ قومی اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن رپورٹ اور بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی اقدامات کے خلاف قرارداد پیش کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت حکومت یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہیں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہر طرح سے مدد جاری رکھے گا۔ The National Assembly of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan and subsequent resolutions of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council. Denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory, aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے ترکی کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ترک سفیر نے اعظم نذیر تارڑ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی سے تعلقات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستان سے ہر شعبے میں تعاون کے لیے تیار ہے۔
कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल अबतर हो गई। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। रात गए भी बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शदीद गर्मी के बावजूद बेहिस हो चुका है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में। शदीद गर्मी में भी कराची में के इलेक्ट्रिक का जालमाना रवैया बरकरार। तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़कर 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। गर्मी से निढाल शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश का कोई वक्त नहीं, दिन में कई घंटे शेड्यूल बंदिश की जा रही है। रात में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से सख्त अजियत का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बच्चे बूढ़े सब बेहाल हैं। हमारा लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होता था। अभी दिन में सिर्फ 4 या 5 घंटे मतलब बिजली होती है, बाकी बिजली गायब होती है। सुबह 9 बजे जाती है, 12 बजे जाती है, फिर 2 बजे जाती है, 4 बजे जाती है, फिर रात को 11 बजे जाती है, 12-1 बजे आती है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का दावा है कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही, सिर्फ चोरी वाले इलाकों में कनेक्शंस काटे गए हैं। आर्जी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शुरू ने मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए आबी ज़राए में सिंध के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह किया गया। बिलावल भुट्टो को जाम खान शुरू ने ब्रीफिंग में बताया कि कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए आबी ज़राए में पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या मामला ज़ेर बहस है इस मुलाकात में? देखिए, मुलाकात में पानी के हवाले से मामलात जेर बहस है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वजीर आपाशी की मुलाकात हुई है और वजीर आपाशी ने कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बराए आबी ज़राए में सिंध के मौक़िफ़ के हवाले से आगाह किया और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी ज़राए में पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की को जाम खान शुरू में ब्रीफिंग और मजीद कहा ब्रीफिंग में कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया कि अगर पानी की कमी भी है तो मुआहदे के तहत किल्लत बराबरी की बुनियाद पर तमाम सूबों को बर्दाश्त करनी होगी। और ब्रीफिंग में वजीर सिंध ने बताया कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तोसा बैराज से आने वाले पानी के गुड्डू बैराज पहुंचने से कबल निस्फ रह जाने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। और उसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क भर में पानी का बहरान अवाम की मुश्किलात का बाइस बन रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क में पानी के बहरान के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। बहरान के हल के लिए पार्लिमान का मौसर किरदार भी नागुज़ीर है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। ISPR का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई है। आपको बताएं कि ISPR का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। ISPR का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई है। ISPR की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेशावर कोर पाक आर्मी की मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली है। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का मसला बन गई हैं। हीट वेव और ग्लेशियर का पिघलना गैर मुतवक्के नहीं बल्कि यकीनी माहौलियाती आफात हैं। आने वाले दिनों में हीट वेव मज़ीद बढ़ेगी। पानी की बचत के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाना होगी। पानी की कमी पर 15 जून तक काबू पा लेंगे। तरबेला डैम में सूरत हाल बेहतर हो रही है।
वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कोशिश है तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। सिंध और चोलिस्तान में पानी के मसले से मुतालिक इकदाम कर रहे हैं। ये हकीकत है कि पानी की शॉर्टेज है कि इंशाल्लाह 15 जून तक हम पानी के पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह ताला। पानी है सिंध में भी, जो खास करके या चोलिस्तान की बात की गई, बिल्कुल वो भी टेल पे है और उसका मसला है। आज जो टेम्परेचर है इस कर्दू में वो तकरीबन 27-28% पे चला गया है और ये 6-7 दिन कंटिन्यू चला तो यकीनन हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि तरबेला से जब पानी सक्खर तक, गुड्डू तक, हैदराबाद तक पहुंचता है तो हैदराबाद तक तो वो 20 से 22 दिन लेता है, मगर सक्खर तक 15 दिन लेता है, गुड्डू तक। इस तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग है। तब मैंने 15-30 तारीख की बात की है। आपको बताएं कि ISPR का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हमा वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। ISPR की जानिब से अहम बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ता रही है। पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल्स के हाथों सौंपी गई है। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार सना बुच्चा साहिबा। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपके वक्त का। ISPR का अहम बयान सामने आया है पेशावर कोर के हवाले से और ये कहा गया है कि पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल के हाथों सौंपी गई है। कुछ सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस हवाले से बात की जा रही थी जिसका ये रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, किसी के भी हवाले से कोई भी मनफी बात की जाए, आई थिंक उनको बुरा लग सकता है। और जाहिर है कि ऐसे पोस्ट पर जब आपके जनरल्स होते हैं या कोई भी हो, आई थिंक उनके लिए ज़रा सोच समझ कर बात मुरतब करने चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि उनको भी फिर अपने मुकद्दस पोस्ट की सोच विचार करके ही बाकी चीज़ों में मदाखलत करनी चाहिए। वो भी अपनी अपनी पोजीशन में रहें और सियासतदान भी इस तरह की पोजीशन ना लें कि किसी की दिलाजारी हो या किसी के रुतबे पर या किसी की तलफी हो इस हवाले से कि उनकी इज्जत नफ्स को भी नुकसान पहुँचे। और जाहिर है कि फौज के हवाले से हम बार बार जब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू गैर मुनासिब है और जिस तरह से वो सिपा-सालार का जिक्र करते हैं, और जाहिर है कि जिस तरह हमने देखा है कि साबिक जो आर्मी के लोग हैं जिस तरह से अब वो अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं, जाहिर है तकलीफ पे अमल होता है। लोग फौज जो है एक मुनज़्ज़म इदारा है, उसको उसी तरह से हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनको भी फिर अपनी अपनी हदूद पर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए एक और कदम। कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए एक और मनसूबा। बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मनसूबा 2 साल में 78 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा, जो नुमाइश से मलीर हॉल तक तामीर किया जाएगा। कराची के शहरियों ने भी खुशी का इजहार कर दिया, कहते हैं सफर में आसानी होगी। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी की जानिब एक और कदम। टूटी फूटी बसों में धक्के खाते शहरियों के लिए हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत 78 अरब रुपए की लागत का 26.6 किलोमीटर तवील ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करेगी। सिंध हुकूमत को मंसूबे की तामीर में एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एजेंसी ऑफ फ्रेंच डेवलपमेंट और ग्रीन क्लाइमेट फंड का ताउन भी हासिल होगा। BRT रेड लाइन से रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। ये मंसूबा जब बनेगा, देखें ये नीपा से लेके पीछे ये कहाँ तक पीछे बना, टैंक चौक तक, कोई भी ऐसी यानी कि ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दे। आवाम के लिए बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आवाम तो दुआएं देगी सिंध हुकूमत को। इसमें किराया भी कम हो गया, वो सुकून से बैठे हुए, इसमें रश भी नहीं होगी,
उसमें जेब कटू भी नहीं होगी, जो सुकून से बैठ रहे वो सहूलत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।